preparation, how you prepare the yarn. So, if we talk about the preparation of the yarn package, so yarn is collected from the spinning section, cannot be used in the loom directly. Before using it in the loom, it is processed in by many ways. So, what is said here कि जो आपका स्पिनिंग से yarn आ रहा होता है, बेसिकली रिंग फ्रेम से जो yarn आता है, दिस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो उसको आप बहुत सारे प्रोसेसेस में लेकर के जाते हो, उसी को आप यार्न प्रिपरेशन बोल रहे होते हो। इससे होता क्या है, टू रिमूव द यार्न फॉल्ट, आपके जितने भी फॉल्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद टू ट्रांसफर द यार्न फ्रॉम स्पिनर्स पैकेज टू अ कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ पैकेज दैट विल फैसिलिटेट वीविंग, दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि उसको इस तरीके से बना रहे होते हैं कि टू ट्रांसफर the yarn from spinners package to a convenient form of package that will facilitate the weaving process. So this is how these things would be done. तो इसमें जो आपके बेसिकली दो चीजें होती हैं, टू थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन इज जो हम लोग ने वाइंडिंग पैकेजेस की बात करी थी, चीज and cone. Cheese and cone are these two different packages that we talk about, or to have a yarn for better appearance and performance. तो yarn का appearance और performance को भी improve करने के लिए we do all these things. तो warp का what are the good qualities of a good warp means, if I talk about in general, good qualities means it should not have hairy yarns, और उसमें कुछ faults नहीं हो, it should be strong, uniform, parallel arrangements हो, free from all impurities, warp tension should be uniform. All these are qualities of any of the good warp yarns if I talk about. So what is the objective of winding? So as I discussed ki this is the process of transfer of yarns from the ring bobbin hangs into a convenient form of package. As I said earlier कि आप सिर्फ बॉबिन से कन्वर्ट करके उनको चीज और पैकेज में कन्वर्ट कर ले रहे हो, चीज और कोन में कन्वर्ट कर ले रहे हो, दिस इज द बाइंडिंग। तो इससे आपकी यार्न की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और एक सूटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू गेट इनटू अ सूटेबल पैकेज दैट विल फैसिलिटेट द वीविंग प्रोसेस फर्दर। तो ये बाइंडिंग से आपका वीविंग प्रोसेस में फर्दर आप इसको हेल्प मिल जाता है। और टू एम्प्टी द स्पिनर्स, स्पिनर्स बॉबिन खाली हो जाती है, फिर आप उसको कैन बी यूज्ड अगेन, और दिस इज द मेन थिंग। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स मींस इट शुड नॉट हैव एनी फॉल्ट। अगर ये स्पिनिंग में कोई भी फॉल्ट रह गया है, फर्दर रह गया है, तो उसको यहाँ पे तो रिमूव होना ही होना है, एल्स इसके बाद आपका सीधे फैब्रिक डेवलप होगा, और it will cause an uneven fault in the fabric, woven fabric, in the final finished product as well. So all the faults should be removed prior to this winding process, in fact, or package or shape should be built in a most usable manner. तो and the yarn should not be damaged, मतलब yarn को damage भी नहीं होना चाहिए, and the package should be standard package that I talk about. तो this is the, so these are different packages: cone, cheese, spool, pern, copper and corp are weft preparation, basically beam, flanged bobbin. So these are different types of packages that we talk about. इसमें आपके if you talk about winding process, so there are two types of winding process. First one is parallel winding, second one is non parallel या cross winding की बात करते हैं। parallel winding में means one is parallel to other, आप एक warp beam बना रहे हो, एक weavers beam, this is known as these are parallel winding mechanisms. Parallel winding, this is something like this. So these all are parallel. और नॉन पैरेलल वाइंडिंग जैसे पर्न कॉप हो गया, तो दी कम अंडर नॉन पैरेलल वाइंडिंग मैकेनिज्म्स। क्रॉस वाइंडिंग मैकेनिज्म्स में वी टॉक अबाउट द चीज, कोन और स्पूल आर क्रॉस वाइंडिंग मैकेनिज्म्स। पैरेलल में देखिए क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल वाइंडिंग मैकेनिज्म्स। तो इन पैरेलल वाइंडिंग मैकेनिज्म्स, टू फ्लैंज्ड कंटेन्स बोथ साइड ऑफ द यार्न। तो इसमें आपके दोनों साइड यार्न होते हैं पैकेजेस में, एंड द यार्न्स आर वाउंड पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलली वाउंड किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो ये दोनों पैरेलली वाउंड किए जाते हैं इन केस ऑफ पैरेलल वाइंडिंग, और दिस इज हाउ दिस वार्पर्स बीम एंड वीवर्स बीम इज प्रोड्यूस्ड।
तो क्योंकि ये दोनों साइड से दीज आर ओपन, तो द एडवांटेज इज इट कैन बी मेनी yarns कैन बी wound एट द सेम टाइम, और नो नीड ऑफ ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म, मीन्स आपको हटाना नहीं पड़ता बार बार, एंड नो नीड ऑफ नो चेंज ऑफ yarn twist, जो आपका पहले ट्विस्ट चल रहा है दैट कैन फर्दर बी कंटिन्यूड एज फार एज these things are concerned, so on and so forth. So and the package is stable. तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. टू साइड्स द पैकेज नीड फ्लैंज, मींस दोनों साइड से आपको अगर पैकेज को बांध रहे हो तो इट रिक्वायर्स तो इसमें कुछ आपके इफ यू टॉक अबाउट, तो उसमें आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं. मींस इट शुड नॉट बी, वो हो सकता है यूनिफॉर्म हो या ना हो, क्योंकि यू आर वाइंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. अगर आप एक साइड से कर रहे हो तो अनरेवलिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा इजी हो जाता है. और फॉर यार्न अनवाइंडिंग नीड सेपरेट मैकेनिज्म्स. जैसे आप इफ यू वाइंड दिस यार्न फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो, तो व्हेन यू विल अनवाइंड, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो फैब्रिक को प्रिपेयर करना है, तो इसको वाइंड करके फिर अनवाइंड करेंगे ड्यूरिंग द वार्पर्स बीम प्रोसेस. तो जब आपकी अनवाइंडिंग की बात होगी तो इट वुड क्रिएट डिफिकल्टी एंड इट वुड रिक्वायर द सेपरेट मैकेनिज्म्स, बिकॉज ड्यूरिंग द केस ऑफ अनवाइंडिंग, तो अगर आपका एक तरफ से होता है यू कैन अनवाइंड वेरी इजिली, बट इट सिंस इट इज फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ्स, तो दिस अनवाइंडिंग becomes somewhat difficult as far as these things are concerned. So near parallel mechanisms, this package contains only one yarn and yarn is wound near the package parallel. तो इसको इस तरीके से मानते हैं. It contains continuously inner side of the package. आप इसको इस तरीके से इसमें बांध रहे होते हो from one side, और it is near about parallel, near parallel winding. इसमें आपको फ्लैंज की जरूरत नहीं होती है. This is somewhat similar to that of the parallel winding mechanisms. तो इसमें क्रॉस वाइंडिंग मैकेनिज्म्स जैसे करते हैं. क्रॉस वाइंडिंग में यू डू इस टाइप से दिस 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 दिस, तो इसको क्रॉस वाइंडिंग आप मैकेनिज्म बोल रहे होते हो. जैसे यू वी डू इन द काइट, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो इस तरीके से आप इस तरीके से क्रॉस वाइंडिंग से उसको रखते हैं. तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड दैट टू सम डिसएडवांटेजेस. दिस वाउंड इज वाउंड क्रॉसली बाय सिंगल यार्न. यार्न सिंगल होता है बट आप उसको क्रॉस वाइंड करते हो. तो ये जो है ज्यादा स्टेबल होता है. इफ आई टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और इसमें आपके मींस जिसको हम कहते हैं कि उलझने के चांसेस कम होते हैं. और द थिंग इज इसमें बैलून फॉर्मेशन हो जाता है. इफ आई टॉक अबाउट दिस बैलून फॉर्म ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, जब आप अनवाइंड करते हो सिंस इट इज इन दिस सिमिलर मैकेनिज्म, तो इसमें आपका दिस टाइप ऑफ बैलून, ये बैलून का एक स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यूरिंग द केस ऑफ अनवाइंडिंग. तो इसको ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है एज वी डिस्कस. So this is some figure that we can see. This is how these full packages can be seen, cheese package and partial package, or this is how these cones are seen. So it can be found in many colors as well. तो उसमें इतने इतने colors को आप use कर सकते हो. और this is how these things are seen and shared. तो हाँ, फिर if we talk about further about the पर्न प्रोसेस, पर्न वाइंडिंग मैकेनिज्म्स, तो इन केस ऑफ पर्न व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जब आप पर्न की बात करते हो, पर्न और कॉपर वेफ्ट वाइंडिंग मैकेनिज्म्स, तो ये वेफ्ट के लिए यूज किया जाता है. नाउ अब प्रिसीजन वाइंडिंग और फर्दर हम लोग वाइंडिंग की प्रोसेस की बात करते हैं. तो व्हेन सक्सेसिव कॉइल्स ऑफ द yarn on a package laid close together and parallel or near parallel with each other, then it is possible to produce a very dense package in which the maximum amount of yarn is stored in a given volume is called precision winding. तो जब आप एक के बाद एक चीजों में आप कॉइलिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे यार्न को आप एक साथ स्टोर कर सकते हो
in either parallel or near parallel mechanisms. So this is known as precision winding. आप successive coils को आप एक साथ wound करते हो. Successive coils means one after the another coils. This is how these things can be said. So it comes under precision winding. So precision winding की if I talk about, basically if we summarize all these things that we discussed from the starting, so how these things will proceed. The objective behind our today's lecture is कि we should understand two basic concepts. What is the typical flow? What is the typical flow and the importance of individual mechanism, importance of each and individual mechanism. तो हमको किस तरीके से फ्लो में जा रहा है यान और उसका क्या क्या एक एक पार्ट का इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड वन इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अब एक एक पार्ट के अंदर में हाउ दीज क्वेश्चंस वुड बी फ्रेम्ड. तो these things also becomes important for our theoretical examination point of view. तो इसमें क्या चीजें हैं हम लोग इसीलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं. तो इसमें आपके ट्रैवर्स मैकेनिज्म होता है और इसमें यार्न आपके ज्यादा होते हैं. लो स्टेबिलिटी ऑफ द पैकेज, आप एक के बाद एक चीजों को वाउंड कर रहे हो तो इट बिकम्स टिपिकली लेस स्टेबल, वेयर एज क्रॉस यार्न्स जो हैं आर टिपिकली मोर स्टेबल क्योंकि यू वाउंड मेनी यार्न्स एट सिंगल टाइम. तो द पैकेज दैट इज फॉर्म्ड इज डेंस. तो यहाँ पे आपका डेंस पैकेज बन रहा होता है.